Today in our studio we have Dr. Vivek Bajaj, and he has scored rank 819, 635 marks, a UCMS alumni, and a keen medicine enthusiast. So congratulations, Vivek. Thanks a lot, sir. A great thing that you have achieved. So how are you feeling? Kind of excited. So मतलब यही है कि एक्साइटमेंट है थोड़ा बहुत ही कि फाइनली आई विल बी एबल टू डू द एमडी दैट आई ऑलवेज वांटेड एंड इतना प्रोलॉन्ग्ड पीरियड था कोविड पेंडेमिक का ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस जिससे तो उसकी वजह से फाइनली वी आर एट द फाइनल स्टेप सो आई फील प्रीटी एक्साइटेड यस Vivek, guys, to be very frank with you, I was just talking to Vivek for quite a while, quite some time before we started the interview, and when I talked to him, I could see that he has an inherent medical quality. I mean, he loves being a doctor. So today we are going to talk about how happy he is and that he loves to do the whole medicine work. And despite all the peer pressure around him, he's choosing to do medicine. And of course, at his rank and everything, he is going to get medicine in a lot of good places. So many a times students ask me, sir, that what branch should I choose? Is it because of the money? Is it because that I'm being forced to take it? And you, despite everything, you have chosen medicine. Tell me why. सर ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होती हैं कि फैमिली फैक्टर्स एंड एवरीथिंग दैट द पीपल हैव टू अर्न मनी अर्ली एंड ऑल दे हैव टू सेटल अर्ली बट इफ़ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ फैक्टर्स इन योर लाइफ द मेन थिंग इज वट यू आर एक्साइटेड अबाउट what is that thing that excites you, that gets you up in the morning, and if you are doing that the money will always come up. तो money का तो there is no factor. You don't have to keep the in mind कि money आएगा जल्दी आएगा बाद में आएगा. Money will anyways come if you have success, if you have achieved success in your life. So yeah, medicine was something that I always wanted to do, and I also mentioned earlier I always loved cardiology. So it is something that excites me, like seeing the ECG and learning about the whole diseases of the heart and everything. So there was some little spark or a little smile every time I read cardiology. So you have to find this thing in your life which makes you like this excited that I will be doing it for the rest of life. So yeah. दोस्तों ये चाहिए, ये जुनून, ये जज्बा चाहिए ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए. वो 14 घंटे भी अगर काम करो ना, तो जब सोने जाओ तो दुख नहीं होना चाहिए कि आज 14 घंटे काम करें, और खुशी मिलनी चाहिए एट द एंड ऑफ डे. ये सोचो कि 14 घंटे काम कर रहे हैं, पैसा कुछ दे नहीं रही, वो अगर वो सोच होगी ना तो सक्सेस नहीं मिलेगी. होता है पैसा मिल जाए, बट जो तुम सक्सेस सोच रहे हो ना अपने दिमाग के अंदर, वो नहीं मिलेगी. और सक्सेस और पैसा बहुत अलग अलग चीज़ है. कोई आदमी 100 रुपये कमा के अपने आप को बहुत खुश और सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल समझता है. कोई आदमी 100 मिलियन के बाद भी कहता है नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे और कुछ करना है. सो सक्सेस और पैसा दोनों अलग अलग चीज़ें, उनको मिलाओ मत. और एंड में तुमने अपने आप, अपने करियर और अपने ब्रांच के साथ जीना है. सो उसमें अपनी खुशी ढूंढो. खुश रहोगे सबको अच्छा लगेगा. खुशी नहीं होगी, पैसा बहुत होगा तो सारा पैसा बर्बाद है. सो विवेक, कमिंग बैक टू द टॉपिक इटसेल्फ, सो विवेक, भाटिया के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर भाटिया में मैंने ज्वाइन अपने फाइनल ईयर में करा था एंड आई रेड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर यहाँ पे एंड देन आई वाज हियर इन द टेस्ट एंड डिस्कशन बैच. सो I want to say two things. First about the faculty and second about the support staff. So faculty, मतलब it was legendary. How can I say? मतलब Praveen sir, I love Praveen sir, Ashwani sir, and then in the Jay Arora sir, then Thamim sir, Bhatia sir. मतलब I just love them. They teach a lot and they are legends. मैं क्या ही बोलूँ सर उनके बारे में. I just want to say कि I love them as well. So yeah, it was a great experience and being taught by such great professors, and it was like very good experience. And second about the support staff, मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा हेल्प करा है इन आवर टाइम्स. मतलब जैसे कोई ऐप का इशू हो गया या फिर इफ़ आई वांट सम PDF एंड एवरीथिंग, तो आई जस्ट टेक्स्टेड अनु मैम और लाइक अनिल. सो दे हेल्प अ लॉट, like whether it be day or night, I just texted them and they replied back very soon. So yeah, it was overall it was everybody loves him here. Trust me on that. अब मैं मैम भी कहती है कि हाँ विवेक आ गया, विवेक को ये चाहिए, विवेक को चाहिए. So I keep listening to your daily basis, query basis. So I'm really glad that you managed to have such an amazing thing here.
बट ठीक है, कमिंग टू द फैक्ट है, तुमने जो गुरुकुल में क्यू बैंक और टेस्ट सीरीज लगाया होगा, यस सर। ठीक है ना, पहली बात तो ठीक है, टेक इशू ज़्यादा तो नहीं थे ना? मतलब आपको भी पता है स्टार्टिंग में था थोड़ा बहुत, वो तो व्हेन समथिंग कम्स अप थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बट द मेन थिंग दैट मैटर्स इज हाउ यू आर ग्रोइंग. इफ यू आर ग्रोइंग एवरीथिंग इज ऑन द राइट पाथ. सो द ऐप ऑब्वियसली मतलब इतना अच्छा हुआ ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. लास्ट में आते आते जब हमने ई गुरुकुल यूज़ कर रहे थे, देयर वाज नो सच इशूज़. ऑब्वियसली रेयरली तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, बट मेन ओवरऑल एक्सपीरियंस लास्ट में था, इट वाज वेरी गुड. नहीं, आई एम ग्लैड. इट्स लाइक अ लिटिल बेबी ऑफ माइन sir. कि जब भी मैं बोलता हूँ ना, कि पूछता जरूर कि अच्छा सुधर रहा है क्या धीरे धीरे. थोड़ा शैतान था पहले, बड़ा सुधर रहा है. सो ओके, ठीक है. टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज किया आपने? सर टेस्ट सीरीज़ तो ऑब्वियसली मैं अपना एक बार थोड़ा शेयर करना चाहूँगा विद माई जूनियर्स एज वेल, दैट हाउ आई अप्रोच्ड माई होल MBBS एंड एवरीथिंग. तो आई started reading in the second year itself, and I made notes for pathology, pharmacology and microbiology. And then I made notes in the third year for final year and third year itself, and I completed them. Then in the final year I joined Bhatia, and I made notes for first and second year again. मतलब first year I was making first time, but second year I made the notes again because यहाँ की faculty obviously ज़्यादा अच्छी थी and यहाँ के notes obviously ज़्यादा अच्छे थे. तो मैंने फाइनल ईयर में अपना जो फर्स्ट हाफ था लाइक द 8th सेमेस्टर, उसमें मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर पढ़ा. एंड जो फाइनल ईयर में मेरा 9th सेमेस्टर था, क्योंकि सिंस ऑब्वियसली प्रोफेशनल एग्जाम्स वर कमिंग, तो मैंने अपना फाइनल ईयर पढ़ा. एंड जो है फिर उसके बाद हमारा टेस्ट एंड डिस्कशंस का आ गया था. तो आई वांट टू टेल कि वन थिंग कि एक अलग अप्रोच है जो मैंने रखा था अपना फाइनल ईयर में टू स्टडी मेडिसिन और टू स्टडी सर्जरी. द अप्रोच वॉज नॉट सब्जेक्ट वाइज कि मैं बैठ रहा हूँ एंड सिर्फ मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ. माई अप्रोच वॉज कि टू गो सिस्टम वाइज, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अप्रोच. आई एम वार्निंग यू पहले ही, बट इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच. लाइक आपने जब पहले एक बार एनाटमी पढ़ रखी है, फिजियोलॉजी पढ़ रखी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है, आप फाइनली में आ रहे हो, आप ऑब्वियसली भूल जाते हो थोड़ा बहुत. हाँ जी, या. तो मतलब इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल जस्ट कि मैं CNS स्टार्ट कर रहा हूँ. कभी कोई मटेरियल यूज़ किया था? नो सर. नहीं. मेरे को स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने बोला कि USMLE यू कैन गो फॉर USMLE, बट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन इंडिया. एज इन की नीट PG के लिए फर्स्ट ईयर वगैरह यूज़ किया हो? नहीं. ओके. तो फॉर एग्जांपल CNS आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट विद न्यूरो एनाटमी, देन डू न्यूरोफिजियोलॉजी, देन न्यूरोपैथोलॉजी, एंड देन गो विद मेडिसिन. And one thing you can also do is you can combine with clinical cases. Like we used to see clinical cases in our posting and come back and study with everything. That was the approach that I kept. Although slightly difficult, more time consuming, but definitely worth it. And मैं डॉक्टरी पेशेंट पे सीखे जाती है, कुछ भी कह लो, ठीक है ना. याद रखो बस ये कि डॉक्टरी पेशेंट पे सीखे जा रही है. लोग क्या, बच्चे क्या करते हैं इंटर्नशिप में, स्पेशली जो मैंने एवरेज स्टूडेंट्स देखे, वो क्या करते हैं, इंटर्नशिप छोड़ के पढ़ाई करने आ जाते हैं. उनको हमने बहुत बार समझाते थे कि क्लिनिकल जो डायबिटीज पढ़ रहे हो यहाँ पे, वो डायबिटीज का पेशेंट तो देखो. Yes sir. Automatically you will get a better chance, better education and a better exposure at the end of the day. Your concepts will be better basically. Exactly. So do make sure that you are attending the clinical posting in your internship while studying for NEET PG. These both the things have to go simultaneous. Option नहीं है, ठीक है ना. It's a mandate kind of thing. क्यू बैंक के बारे में बताओ. क्यू बैंक में कैसे क्वेश्चन को बुकमार्क करते थे? ये सर आई वुड मतलब बेसिकली जब आप क्यू बैंक कर रहे हो, ऑल्दो फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट दैट बिग अ फैन ऑफ क्यू बैंक, बट मतलब इफ़ यू आर डूइंग इट इंटर्नशिप आई वुड एडवाइज अगेंस्ट इट. बट इफ़ यू आर डूइंग इट इन कॉलेज लाइफ देन इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. आपको जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कॉलेज टाइम में ही, उसके साथ यू कैन डू क्यू बैंक. बट इफ़ यू आर डूइंग इट इन इंटर्नशिप इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो कॉलेज टाइम में क्यू बैंक यू कैन डू. एंड द थिंग इज़ कि यू कैन बुक मार्क क्वेश्चन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी बुक मार्क क्वेश्चन होंगे दे विल कम हैंडी इन द लास्ट टाइम, एज आई विल टेल यू थोड़ी देर में कि हाउ यू कैन यूटिलाइज बुक मार्क क्वेश्चन. सो लाइक आपको पता ही है कितना हमारा एग्ज़ाम डिले हुआ एंड ऑल. सो जनवरी में आई स्टार्टेड अ डिफरेंट अप्रोच टू स्टडी एंड आई कॉल इट द हाफ एन हाफ स्ट्रेटजी. यूनिक ने half an hour strategy. So what is that strategy is that whatever time I am getting, like 12 hours, 6 hours, 3 hours, so I will divide my time into half. And since हमने questions नहीं कर रखे होते स्टार्टिंग में,
तो अगर आपको अब क्वेश्चंस पे फोकस करना है तो यू कैन डू दिस स्ट्रेटजी. लाइक इन द फर्स्ट हाफ वट यू कैन डू इज़, कोई भी आपने क्यू बैंक लगाया या फिर कोई भी आपने टेस्ट लगाया, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग रैंडम क्वेश्चंस. लाइक टेस्ट में तो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ट सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस. सो फॉर एग्जांपल माय लिमिट वाज कि आई एम डूइंग 20 क्वेश्चंस अ डे. सो इन दैट हाफ टाइम the goal is not to be 20 questions, the goal should be 20 topics, 20 random topics, because obviously test में जो questions आएंगे they are obviously high yielding and very important topics से ही आते हैं सारे questions. तो आप अगर 20 random topics, 20 high yielding topics कर रहे हो from random subjects, तो एक जो प्रॉब्लम रहती है लोगों की, यार मैं भूल रहा हूँ, मेरे को पहले 1 महीने पहले वो सब्जेक्ट पढ़ा था, वो नहीं रहेगी. आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट की डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिवाइज होते रहेंगे. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डिड एंड आई थिंक कि काफ़ी अच्छा रहा. एंड यू हैव टू डू इट लाइक रिलीजियसली. लाइक आप 20 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो, 50 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो, वट एवर बी योर फ्रिक्वेंसी, यू कैन इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी डे बाय डे. सो बाय द एंड आई केम इन द लास्ट टाइम, जो मेरा था कि टॉपिक्स रिपीट हो रहे थे. मैंने देखा कि अभी कल ही तो ये टॉपिक पढ़ा है, but the thing you have to do, don't skip that topic, revise it again, पढ़ो उसको दोबारा, because this will help. Revision is the key, as everyone says. So अगर आप high yielding topics का revision करे जा रहे हो, बार बार करे जा रहे हो, तो ultimately आपके हर subject के high yielding topics आपके tips पे होंगे. By the end आप 3 या 4 months जो आपके ख़त्म होंगे क्वेश्चंस करने के, तो इतना टाइम में ये होगा. This is what you have to do in the first half of your whole day. And in the second half you can make a schedule, you know, like कि एक कोई सब्जेक्ट उठाया, मैंने 3 दिन दिए एक सब्जेक्ट को, तो यू कैन डू फिजियोलॉजी वट एवर बी इट. तुम नोट्स पढ़ सकते हो अपना, या टेस्ट एंड डिस्कशन के नोट्स पढ़ सकते हो. तो मैं ये करता था. तो दिस वे आप अपना सब्जेक्ट भी कैरी ऑन कर रहे हो, दिस वे यू आर कैरिंग एवरी सब्जेक्ट एज वेल साइमल्टेनियसली. ब्यूटीफुली पुट. यस सर. ई गुरुकुल मंत्रास देखे थे? यस सर. मंत्रास को कैसे पढ़ते थे? सो बेसिकली मंत्रास को पढ़ने के लिए जैसे कि ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं बताना चाहूँगा. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज एवरीवन नोज कि एम्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई सेट जो अभी हो रहा है, नीट पीजी के लिए इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच. सो बट एनीवेज यू हैव टू डू इट, डजंट मैटर. सो व्हाट आई डिड वाज आई केप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द लास्ट. ऑलराइट, मतलब जो मेरी लास्ट रिवीजन होगी, द लास्ट 20 days आई गेव लाइक 1 सब्जेक्ट पर डे, एंड मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था फॉर 3 और 4 years जो भी लिमिट था. एंड उन 3 या 4 years क्वेश्चन में आई यूज टू रिवाइज द होल सब्जेक्ट. ऐसा नहीं था कि जस्ट कि फ्लिप करता गया क्वेश्चंस की आता है, डजेंट मैटर. आपको उस क्वेश्चन का टॉपिक रिवाइज करना है, बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, एग्ज़ाम में टॉपिक रिपीट होगा. सो जस्ट आपको फ्लिप नहीं करने क्वेश्चन की, या आई हैव सीन दिस, गिव अ 1 day होल डे टू द सब्जेक्ट. मतलब इफ इट्स अ शॉर्ट सब्जेक्ट यू कैन गिव हाफ अ डे. फॉर मेडिसिन और सर्जरी यू कैन गिव 1 day इन द लास्ट. दिस इज माई लास्ट रिविजन दैट आई एम डूइंग. उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे अपनी पूरी रिविजन बेस्ड कर सकते हो. दिस इज व्हाट आई डिड. आई थिंक इट्स वेरी गुड यार. मैं बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल एडवाइसेस दे रहा हूँ. इवन आई एम लर्निंग, ठीक है ना, कि वी कैन एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ थिंग आल्सो. So every year I make a list of advice from the rankers, so that we can pass it to our current students. Yes, sir. Because every ranker has some uniqueness. Yes, sir. They have a USP which they have applied, and that is why they have managed to crack that exam, get that top 1000 league or anything. So again, very, very wonderful advices. एक जो प्रॉब्लम मुझे बहुत बच्चों से सुनने में आती है, that grantors दिया उसको रिव्यू नहीं करते. Yes, sir. ठीक है ना, we are a staunch believer that a grantor should be thoroughly reviewed. And it should not be done just for the sake of giving it. Yes, sir. You have to review it. That is the whole purpose. Yes, sir. How would you advise that particular point? So जैसे आपने बताया, स्टार्टिंग में मेरा भी एक्चुअली ऐसा ही था कि आई वॉज गिविंग ग्रैंड टेस्ट बट आई वॉज नॉट रिव्यूइंग देम. तो बट मैंने 3-4 ग्रैंड टेस्ट दिए एंड माई मार्क्स वर गोइंग नो वेयर, लाइक लिटरली. तो आई थॉट कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. एंड आई वॉज भाटिया सर्स इंटरव्यू, एंड उन्होंने भी बताया कि रिवाइज ऑब्वियसली. So this was one thing that I was missing. So from January I started reviewing my exams, whatever I was giving, and not just the wrong ones, every question,
लाइक आई सेड कि नॉट 20 क्वेश्चंस बट 20 टॉपिक्स. सो वहाँ से मेरे को पता चला कि वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एंड व्हाट आई नीड टू डू इन माय स्टडी स्टाइल, क्या चेंज करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए. तो उस सब से मेरे को पता चला. सो इट्स नॉट जस्ट कि यू कैन रिव्यू इट ओनली वन टाइम. लाइक मेरे पास स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स थे, बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, बट बाय द एंड मेरे को एग्ज़ाम्स थोड़े कम पड़ गए कि मैं और क्वेश्चंस करूं. सो आई थॉट कि द बेटर आइडिया वुड बी रिवाइजिंग द एग्ज़ाम्स. लाइक आई गेव द एग्ज़ाम अगेन फ्रॉम द PDF प्रोवाइडेड बाय द भाटिया विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट स्टाफ. तो मैंने वो क्वेश्चंस दोबारा करे, नॉट जस्ट वन टाइम. एंड जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आई वाज रिवाइजिंग 20 क्वेश्चंस पर डे और 50 क्वेश्चंस पर डे. नाउ आई रिवाइज द होल टेस्ट इन वन डे. तो मैंने एक पूरा दिन अपने उस सब्जेक्ट टेस्ट को रिवीजन में दे दिया, द ओनली द ऑब्वियसली द हाफ वन. एंड तो उससे आपको जो है द थिंग इज़ कि यू कैन डू दिस इन द लास्ट वीक और सो, वीक और 2 वीक, सो दैट यू आर हैविंग द क्वेश्चंस एट योर टिप्स. लाइक मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊँ, इन द लास्ट 2 वीक आई रिवाइज मतलब ऑलमोस्ट 4,000-5,000 MCQs and a lot of them came from that my question bank, you know, my personalized question bank. तो उस 4-5 हज़ार क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आए. तो इट्स लाइक कि मेरे टिप्स पे क्वेश्चंस थे. सो यू कैन डू दैट एज वेल. I think that's a very simple yet such a doable advice that if you are watching this interview, do try and put these kind of inputs in your own study planning and everything. So just a last message to all our viewers that how they can get better for NEET 2022. I strongly believe that everyone have to individualize their approach, and personally speaking, don't listen to toppers. ठीक है, I never used to listen to toppers. अगर कोई एक आधा बंदा देख रहा है तो you can see it, but the thing is कि you have to individualize your approach. You have to see where you are making mistakes. You have to improve them. My approach might not work for you. The basic thing is this. आपको multiple लोगों के interviews you can see and you can see what is like best for you. Okay, so you have to basically individualize the whole approach and you can achieve everything and Basically, anything. to summarize, it's your decision to choose his advice or not. But if you choose it, then it's your responsibility. So take a calculated decision. Don't follow anybody with total a blind eye, but take a calculated decision. It's your life. So Vivek, if we can have a thumbs up right now. Yeah. अभी भाटिया है तो भरोसा है. ठीक है guys.